Niyogakshemaha, free from ideas of gain and protection. Atmavan, established in the self. Translation purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki Jai. The Vedas deal mainly with the subject matter or with the subject of three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be freed from the dualities and from all anxieties to gain and safety, and be established in the self. निधि माता ये पढ़िए आप ट्रांसलेशन पढ़िए. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Purport: all material activities read the translation first once again. Okay. From the Vedas deal mainly with the subject of three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. आगे पढ़ना है प्रभु जी. प्रभु जी आगे पढ़ना है. Yes, please go ahead. Yeah. Purport: all material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results, which cause bondage in the material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to position of transcendental plane. Arjuna, a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning, therein Brahma Jijnasa or questions on the supreme transcendence. All the living entities who are in material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished, then the chance of spiritual realization is offered in form of Upanishads, which are part of different Vedas. As the Bhagavad Gita is part of fifth Veda, namely the Mahabharata, the Upanishads mark the beginning of transcendental life. As long as the material body exists, there are actions and reactions in the material modes. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress, cold and warmth. By tolerating such dualities, become free from anxieties regarding gain and loss. This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness, when one is fully dependent on goodwill of Krishna. Okay, thank you, Mata. Okay, let me share the presentation. Okay. So if you remember, in one of the classes we did this verse 42 and 43. Yam imam pushpitam vacham pravadanti avipaschitaha vedavad rataha partha nanyat astiti vadina. कि जिनकी बुद्धि कम होती है या कम बुद्धिमान व्यक्ति
वेदों की अलंकृत भाषा से, they get attracted by flowery language of Vedas. इसमें क्या बताया गया है? Which recommend various fruitive activity. Fruitive activity मतलब कर्म कांडी, उसमें बातें बताई गई हैं. For elevation to heavenly planets, because of these कर्म कांडी activities, one can go to heavenly planets. He can attain good birth in the next life. He can attain power. He can become very powerful materially, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. So Krishna explained in this verse to Arjuna that Vedic language in general is very flowery. Flowery matlab very attractive. Why it is attractive? Because it assures material opulence. The Karam Kandi section. Vedas have three sections largely: Karam Kand, Gyan Kand, and Upasana Kand. So here Krishna is talking about Karam Kand section of Vedas. The language is very attractive. Anyone who reads gets attracted because it suggests by performing various anushtans, various yagyas, one can attain various types of material opulences. If one is expecting or desiring a good birth in the next life, so Vedas provide how to do that. If one wants to go to heavenly planet for more material enjoyment, Vedas have the process how to attain that. If one wants to become powerful prime minister of the country, Vedas have process to do that. And when people get attracted to such alankrit language or attractive language or flowery language, they start thinking this is the ultimate goal of life. There is nothing more than this. Now, why Vedas are suggesting such methods for material opulence? Is that the objective of Vedas? No, that is not the objective of Vedas. It is to ensure people who wants to enjoy materially, they enjoy within the boundary of Vedas. They enjoy in a regulated manner so that it also leads to gradual purification. Because if one is trying to enjoy outside the boundaries of Vedas, that leads to a sinful life and demotion into lower planets like hellish planets. To save people from going to hellish planets, Vedas provide a mechanism to enjoy materially, but with certain regulations. So they can enjoy also at the same time. Gradually, their heart is getting cleansed. They're getting purified. For example, 4 regulated principles we follow: no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. These are outside the boundaries of Vedic literature. And anyone involved in these things is sure shot to go to hellish planets. Now, Vedas provide a mechanism. For example,
one who is engaged in illicit sex activities, Vedas provide vivaha samskara so that you enjoy sex, but in a regulated manner with one wife. So enjoyment through illicit sex was unlimited. Enjoyment through vivaha samskara becomes limited. So there is a provision of sex enjoyment, but in a limited manner. Similarly, other ways one can enjoy following the instructions of Vedas. Now, what is the need to make, the language so attractive? Otherwise, people will not build faith in Vedas. I remember when we did this journey of self-discovery course during lockdown. Let me see if I kept a slide for this. Okay. Before that, you can see I put some picture. These flowers, they look very beautiful, isn't it? But they are very poisonous. If you try to eat them, one will lose his life. Similarly, the flowery language of Vedas for sense gratification is very attractive, but if one limits his life only to those instructions, his life becomes poisonous. But because many people in this world are atheists, do not believe in God, do not want to follow spiritual life, for them the language in the Vedas is made so attractive that they move from unlimited sense enjoyment to limited regulated sense enjoyment. Large part of Vedas is Karam Kand. Almost 90% part of Vedas is Karam Kand, which talks about fruitive activities for sense enjoyment. The question is why a large part of Vedic literature is material enjoyment if that is not the objective of Vedas. Objective of Vedas is not sense enjoyment, but large part of Vedic literature does talk about sense enjoyment through different yajanas or anushtans. It is because large part of population is atheistic. They don't want to follow spiritual methods, spiritual ways, spiritual life. And I was giving example, when we did this course, the journey of self-discovery during lockdown, almost 200 people registered for this. 70 actually joined on the first day for this course. It reduced to 30 on the last day. Out of 30, 8 to 10 joined this class, Bhagavad Gita class. And out of 8 to 10, around 5, 6 are left. Okay. So practically out of 200, we have 4 or 5 people actually now trying to live a spiritual life. This is the same ratio you will find in Vedic literature. 90% talks about Karam Kanda, 10% talks about Gyan Kand, and little bit about Bhakti. Because there are not many takers of Bhakti. And out of these 5, you can see some of them, today in the class. Narendra Prabhu, Nidhi Prabhu, Krishna Prabhu, Shivani Mataji. Very handful. So large population is completely materialistic, and Veda's attractive language to attract them and build some faith in Vedic literature. So that is the purpose of Vedas. Okay. Any questions so far?
But that is not the ultimate purpose of Vedas. Objective of Vedic literature is not sense enjoyment. It is only the beginning of spiritual life. It is not the ultimate objective. In Bhagavad Gita, 15th chapter, 15 number verse, Krishna defines what is the purpose of Veda. Sarvasya chaham vidhi sanivishto mattaha smritir jnanam apohanam cha vedischa sarver ahem eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all Vedas, I am to be known. So the ultimate objective of Vedic literature is to know Krishna. Then Krishna says, indeed, I am the compiler of Veda. I have, given this Vedic literature. And I am the knower of I know every part of Vedic literature. And the only purpose of reading Vedic literature is to know who is Krishna. Who am I? There is no other objective of reading Vedic literature. So this Karam Kanda section is only to make materialistic people begin their spiritual life. But many of them get so attached, so attracted to this language that they think this is the only goal of life. Only goal of life is to khao, piyo or ash karo. Only goal of life is to go to heavenly planets. That's it. Basically to remain in the material world. Okay. In 2 point, Bhagavatam, 2nd canto, 2nd chapter, 34 number verse, it says the Brahma, the great personality of Brahma, with great attention and concentration of the mind, studied Vedas 3 times. And after scrutinizingly examining them, he ascertained that attraction for the Supreme Personality of God, Krishna, is the highest perfection of religion. So what Krishna said in this verse, Brahmaji is confirming this. By studying Vedas 3 times, very attentively, with full attention, and concluding what? The attraction for Krishna is the highest perfection of religion. Okay, so to what extent we are attracted to Krishna defines how successful we are in life. हमने जीवन में कितनी प्रगति की है उसका मापदंड केवल एक है, हमारी कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति है. समझ रहे हैं? If we are attracted to Krishna, yes, we are making progress. If you are still not attracted to Krishna, it means we are not making progress. Our life is not successful. Okay? Mentioned by Krishna himself in Bhagavad Gita and by Brahmaji in Srimad Bhagavatam. Okay? Alpana Mata ही नहीं आई क्या अभी प्रफुल्ल प्रभु? क्लास मिस हो जाएगी उनकी. नहीं आई प्रभु जी. हाँ, बुलाओ, मिस हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है. Okay. So, what is the difference between the 2 methods? One is following Karam Kanda, then coming to Gyan Kanda, then coming to Upasana Kanda. It is gradual purification of the heart and gradual upliftment in our spiritual life. If we follow entire Veda in sequence, like if one is very materialistic, then he starts following some Anushthan, Yajna for material enjoyment. After some time he thinks,
I am still frustrated. Whatever enjoyment I'm doing, it is very temporary. It doesn't last a long time. And then he starts looking for what? Liberation from this material world. It comes to Gyan Kand. After liberation also, he is frustrated. He is not happy. Then he starts looking for even higher enjoyment, which is eternal. Then he goes to Bhakti Yoga. Then he goes to Upasana Kand. But that is like going through the staircase. That is through going through the staircase. And many of them don't even reach because they get stuck on the way, because they are very much attracted with heavenly life. They are very much attracted with beautiful women in this world. They are very much attracted with beautiful cars, beautiful bungalows. They think this is the best enjoyment I can have. So they don't want to go. They get stuck. So there is a big threat of going through sequence. But the quick progress one can make in spiritual life is by knowing what is the purpose of Vedas. Okay? So one who knows what is the ultimate purpose of Vedas, for him spiritual life is like going by lift. Okay? By going by lift, not going through Karam Kand section, then Gyan Kand, then finally Upasana Kand or Bhakti Yoga. As Krishna mentioned, what is the purpose of Vedas is to know Krishna. Vedascha sarve aham eva vedaya. So we don't have to read entire Vedic literature, neither we have time in this life of 60, 70 years. Vedas are very, very broad. 18 Puranas, 6 Puranas for Rajaguna, 6 Puranas for Tamoguna, 6 Puranas for Sattva-guna. Who has a time, energy to read Vedic literature? So if one by fortune knows what is the purpose of Vedas, he can elevate himself directly to Bhakti Yoga, ultimate spiritual life. Okay? Is that clear so far? Any questions so far? Any questions so far? समझ आ रहा है सबको सब कि नहीं आ रहा है? Yes or no? हाँ ना तो कुछ तो बोलिए. आ रहा है? Yes, just shake your head like this. Yes. सुनील लड्डा प्रभु समझ नहीं आया? ओके. सत्यनारायण प्रभु जी बताइए, समझाएंगे. वेदों का उद्देश्य केवल सकामता नहीं है. कृष्ण को जानना ही उसका मूल उद्देश्य है. हाँ. तो फिर ऐसा क्यों बनाया, ऐसा काम कार्य क्यों बताया गया वेदों के अंदर? क्या उद्देश्य है? ताकि पहले उसका मन सकामता में लगेगा तो फिर धीरे धीरे जाके निष्काम होता जाएगा. या एक लालच दिया उन्होंने सकामता भी करने से ये. यस, लालच दिया है. जैसे वो क्या दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, गधे को क्या दिखाते हैं, गाजर दिखाते हैं ना, है वैसे ही दिखाया है, ताकि उसकी थोड़ी श्रद्धा वेदों में स्थापित हो जाए. लेकिन वो वेदों का परम उद्देश्य नहीं है, ये हमको समझना चाहिए. परम उद्देश्य क्या है? वेदश्च सर्वेर अहम एव. कृष्ण को समझना, जानना परम उद्देश्य है वेदों का. और ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही है, उसको 3 बार बार अध्ययन करके, कि वेदों का उद्देश्य केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना, उनके प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न करना है. That is the only ultimate objective of studying Vedas.
ठीक है। अब यदि किसी को पता लग जाए कि वेदों का सार क्या है, क्या सार है, कृष्ण की भक्ति करना, तो उसको ये सीढ़ी से जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो सीधा भक्ति योग में जा सकता है, ठीक है। दो रास्ते हैं, दोनों ऊपर जाते हैं। एक बहुत लंबा है और उसमें गारंटी नहीं है, रास्ते में फंस सकते हैं हम लोग, और दूसरा लिफ्ट जाने के बराबर है, ठीक है। प्रफुल्ल समझ आया? प्रफुल्ल वो बताइए एक बार सबको। बस प्रभु जी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, जितना समझ में आ रहा है वो यही है कि अपने जो काम है वो सारे करते रहो, उसके साथ प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का ज्ञान नाम लोगे तो आपका आगे जीवन सही चलता रहेगा। वो तो सार ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर का सार क्या है? आज के लेक्चर का सार तो ये है कि अपने जो जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पूरा सांसारिक चीजों से जकड़े रहते हैं, उनको आगे करना चाहिए। भगवान की यही है अभी तो। ओके, ठीक है। जो एकदम नास्तिक लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए वेदों में एक भाग है जिसको बोलते हैं कर्म कांड, जिसमें इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए वेदों के अनुसार वो बताई गई, जिसको कर्म कांड बोलते हैं, ठीक है। तो यदि उस रास्ते से जाएंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन यदि सौभाग्य से हमको भक्तों का संग मिल जाए और हमको पता लग जाए कि वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण को जानना है, तो तुरंत हम भक्ति योग शुरू कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग जो इस क्लास में हैं वो सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सबके हाथ में माला आ चुकी है, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। आपको वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जप करता है इसका अर्थ यह है कि उसने वेदों का अध्ययन कर लिया है, क्योंकि वही सार है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ लोगों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो मैंने अभी कहा, ओके है। भागवतम में कहा गया है निगम कल्पतरु गलितम फलम, जितने भी वेद हैं उन सब का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम है। एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर इज श्रीमद् भागवत महापुराण, ओके। सो वेदों का सार भागवतम है, और भागवतम का सार क्या है? कालेर दोषा निधे राजन। भागवतम की आखिरी स्कंद में बताया गया है कि कलयुग में क्या है? दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है, क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परमजित। केवल कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से व्यक्ति इस संसारिक जगत से छूट सकता है। जिसको ये पता लग जाए इसका मतलब उसको वेदों का अध्ययन हो चुका है, ये कहने का तात्पर्य, समझ रहे हैं? भागवतम वेदों का सार है, ये श्लोक भागवतम का सार है। क्या कहता है? केवल भगवान का कीर्तन करने से, जप करने से व्यक्ति सारे संसारिक कर्मों से छूट सकता है, संसारिक बंधनों से छूट सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा था जो व्यक्ति जप कर रहा है बहुत सिंसियरली, प्रेम से, गंभीरता से, इसका अर्थ यह है कि वो उसने वेदों के सार को समझ लिया, उसने सब वेदों को पढ़ लिया, पिछले कुछ महीनों में उसने पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया। यदि हम वेदों का अध्ययन करने जाएं तो कई के जन्म लग जाएंगे, लेकिन जो जप कर रहा है अभी उसने वेदों का अध्ययन पिछले कुछ महीनों में कर लिया, ये कहने का तात्पर्य। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस डिस्कशन। यही बात एक और उपनिषद है जिसको बोलते हैं कली संतरणा उपनिषद, उसमें कहा गया है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को, क्या कहते हैं? इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परत उपाय सर्वा वेदेषु दृश्यते। यानी कि
the collection of 16 names. 16 names मतलब Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is the only destroyer of sins in Kali Yuga. केवल यही इस कलयुग के पापों को नष्ट कर सकता है. No other remedy. नतः परायतरो उपाया, परतरा उपाय, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं. पूरे Vedic literature, no other remedy can be found in any part of Vedic literature. Only remedy to kill sinful propensity in Kali Yuga is to chant the holy name. This is the essence of all the Vedas, Purana, इतिहास, कुछ भी ले लो आप, उसका सार यही है. ठीक है. और यही बात एक और शास्त्र, इसको बोला गया चैतन्य चरितमृत, यही बात कही गई है. हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यत्र. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy name of the Lord. There is no other way, no other way, no other way. आपको लग रहा है अभी आप कितने सौभाग्यशाली हैं? जिन वेदों को पढ़ने में जन्म जन्म लग जाते हैं, वो वेदों का सार आपको कुछ महीने पता लग गया है. नरेंद्र प्रभु जी, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वेदों में 90% तो आप बता रहे हैं कर्म कांडी है, और अधिकतर प्राणी सब अल्प बुद्धि हैं. और हरे कृष्ण मंत्र ही सभी चीजों का सार है. सब वेदों का सार यही है. ये बात को अच्छे समझ जाइए. यदि हम ये श्रद्धा उत्पन्न कर पाए तो हमारा जप में मन लगेगा, हम अच्छे से जप कर पाएंगे, श्रद्धा से कर पाएंगे, है कि नहीं? अभी हम कभी कभी जप नहीं बढ़ा पा रहे हैं. क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है. हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि हमारे हाथ में क्या चीज है. ये ऐसी चीज है जो जन्मों जन्मों के सौभाग्य के बाद, आफ्टर पता नहीं हाउ मेनी लाइफ टाइम्स वन विल गेट अपॉर्चुनिटी टू चैंट द होली नेम. और यहां बताया गया इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है. देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर. So you all are very, very fortunate people. We all are very, very fortunate people that we got this opportunity to chant in this life. Request everybody to switch on your videos, please. आधे से ज्यादा लोगों की वीडियो ऑफ है. Please switch on your video. Thank you. Smileta Prabhu, any comment? You are feeling fortunate or not? Yes, 100%. पर प्रभु जी पूरा ध्यान अभी नहीं लग पाता है. मतलब मैं साथ में रहता हूँ, पूरा ध्यान नहीं लग पाता है, अभी भी सब घूमता है. कोई बात नहीं. इसलिए कोई भी प्रश्न हो तो पूछना चाहिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड आस्क एंड क्लैरिफाई. उसको डाउट के रूप में मत रखना. डाउट इज लाइक ए डीमन which can destroy our faith. Okay, तो डाउट को रखना नहीं है. डाउट नहीं है प्रभु जी, डाउट बिल्कुल नहीं है, पर अभी कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं आ पा रहा जो एक्सपेक्टेड है. मतलब ऐसा, पर रूटीन बिल्कुल कंफर्म है. मतलब 7 माला सुबह मतलब है ही है, कुछ भी हो जाए, कम मॉडल. ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा. Okay, let's go next.
कंक्लूजन क्या है? One who is chanting the holy name with faith and love, he has read all the Vedas and understood its. Anyone who is chanting, he has read all the Vedas, he has taken the lift, and very soon he'll be transferred to the spiritual world. Okay. Next. ये किसको मिलता है सौभाग्य? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. The living entities are promoted and degraded by the laws of nature, but if one is very, very fortunate by association with saintly persons, he gets the seed of devotional service and his life becomes successful. Okay? ये कैसे हुआ? ये भाग्य सौभाग्य कैसे मिलता है? किसी भक्त के या भक्तों के संग से, जो सीधा हमारे हृदय में भक्ति का बीज डाल सकता है. पूरे उदयपुर में कितने लोग जप करते हो? कितने लोगों को पता है कि वेदों का सार भगवान कृष्ण के नाम का जप करना है? नहीं पता है. We all are getting this opportunity because we got some association of devotees. So these devotees are like ambassadors of Krishna, who have the power to sow the seed of devotion in one's heart. समझ रहे हैं ना आप कि भक्तों का संग, devotee association is so important for our spiritual life. Okay. Next, Krishna says in this verse, Trigun Gunya Vishya Veda Nistre Gunyo Bhava Arjuna. Krishna is telling Arjuna, this entire Vedic literature is largely with the subject of three modes. Three modes matlab Karam Kand. Okay. And he's telling Arjuna, go beyond three modes. Transcend these three modes. And the only process to transcend three modes is devotional service. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and comes to the level of Brahman. Okay? So he's telling Arjuna to get out of the influence of three gunas, and the process he's suggesting is devotional service, serving Krishna through mind, through intelligence, through all the senses. Okay? That is the only way to get out of the influence of three gunas: Tamoguna, Rajoguna, and Sattva. There is no other process. So this chanting process gradually will bring us out of the influence of three modes of material. तीन गुणों से, प्रभाव से ये जप की जो विधि है हमको बाहर निकाल सकती है. ओके. अब जो तीन गुणों से प्रभावित होते हैं उनका गंतव्य क्या होता है, उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा. यानी कि जो सप्त गुण में स्थित होते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर जाते हैं. ऊपर मतलब जो भौतिक जगत में ऊंचे लोग हैं, हायर प्लैनेट्स हैं, जैसे स्वर्ग, वहां जाते हैं. तो सतगुणी लोग जाते हैं स्वर्ग में. जो रजसी लोग हैं, राजसी लोग हैं, रजोगुणी लोग हैं, वो यहीं रह जाते हैं. कहाँ? इसी पृथ्वी पर. और जो तमोगुणी लोग हैं, अथो गच्छन्ति तामस, अधो मतलब नीचे जाते हैं. नीचे मतलब नरकीय ग्रहों पे जाते हैं. सो सप्तगुणी लोग स्वर्ग में जाते हैं, रजगुणी यहीं रह जाते हैं अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, भौतिक योजनाओं को पूरा करने के लिए. और तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं, निम्न लोकों में जाते हैं. दे गो टू लोअर प्लैनेट्स. लेकिन भक्त कहाँ जाते हैं? जो तीन गुणों से परे हैं, वो अध्यात्म जगह जाते हैं.
ठीक है, जो 3 गुणों से बाहर निकल चुके हैं भक्ति की विधियों के द्वारा, जप के माध्यम के द्वारा, वो सीधा आध्यात्मिक जगत जाते हैं, वैकुंठा, जहां कोई कुंठा, कोई दुख, कोई दर्द नहीं। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं 3 गुणों से बाहर निकलो, क्योंकि सत्व गुण में भी रहना अच्छा नहीं है, वो भी एक बंधन है, वो भी एक जंजीर है, सोने की जंजीर है लेकिन वो भी जंजीर है। ठीक है, इसलिए कृष्ण बोलते हैं अर्जुना को, क्या बोलते हैं, निस्त्रय गुणो भव अर्जुना, अर्जुना इन 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलो। तो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, और 3 गुणों के बाहर मतलब उसको बोलते हैं निर्गुणा स्तर या गुणातीत हो जाना। क्या बोलते हैं, निर्गुणा, यानी गुणों से बाहर। अभी उदाहरण समझेंगे, इस 4 पिक्चर्स में एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है, एक सत्वगुणी है, एक निर्गुण है। ठीक है, जो सिटी लाइफ है वो रजोगुणी है। रजोगुणी मतलब टू मच ऑफ एक्शन। ओके, सिटी लाइफ में रहना मतलब रजोगुणी, पब बार में रहना मतलब तमोगुणी, गांव के जीवन, विलेज लाइफ इज सत्वगुणी, लेकिन मंदिर के अंदर रहना, धाम के अंदर रहना इज निर्गुण स्टेज, 3 गुणों के प्रभाव से बाहर है। ठीक है, सिटी लाइफ रजोगुना, पब लाइफ तमोगुना, विलेज लाइफ सत्वगुना, एंड लाइफ इन द टेम्पल और इन धाम or in a home which has become a temple because of the presence of Krishna, it becomes nirguna. It goes out of the influence of 3 modes. Second example, spicy food is rajoguna, mass meat is tamoguna, शाकाहारी सत्वगुना, लेकिन जब वही शाकाहारी भगवान को भोग लग जाता है, it becomes nirguna. It goes out of the influence of 3 modes. Okay. जो रजोगुणी है they stay here only, earthly planet. जो तमोगुणी है they go to hellish planets and suffer miserably. And जो सत्वगुणी है they go to heavenly planets, and people who are following spiritual life diligently and gone out of 3 modes, they go to spiritual world or Vaikuntha. Okay, earthly planet, hellish planet, and heavenly planet, these all are part of material world, not spiritual world. Okay, समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कि नहीं? फिर भगवान बोलते हैं आगे, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलकर इस संसार के द्वंद्वों से भी बाहर निकलो। और द्वंद्व क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्युअलिटीज ऑफ लाइफ। सो ड्युअलिटी इज अ इंट्रिंसिक नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत का स्वभाव है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब हार भी होती है, जीत भी होती है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है, मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, दिन भी होता है, रात भी होती है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। ये क्या है, द्वंद्व है। लेकिन अध्यात्म जगत में दिन रात नहीं होता है, केवल दिन होता है। और वहां पर सूरज नहीं है रोशनी देने के लिए, वो स्वयं प्रकाशित है। So dualities are there in this material world. जब तक हम 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे, रजोगुण, तमो या सत्वगुण, हमको ये द्वंद्व हमको सताते रहेंगे। हमारे दुख का कारण, एंजाइटी के कारण, स्ट्रेस का कारण, डिप्रेशन का कारण ये द्वंद्व है। And constant attraction to Krishna leads to a stage beyond dualities. ये मान सम्मान, लाभ हानि, सुख दुख, मित्र शत्रु, जन्म मृत्यु, ये भाषा कौन बोलते हैं, जो 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। जो 3 गुणों के बाहर निकल चुके हैं, उनका केवल एक ही चिंतन होता है, क्या,
भक्ति के अनुकूल क्या है उसको स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल क्या है उसको रिजेक्ट कर देना। अनुकूलस्य असंकल्पा, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये द्वंद्वों से भी बाहर निकलो, इन द्वंद्वों से भी बाहर, यानी कि रिमेन स्टेबल इन ऑल द सिचुएशंस ऑफ मान अपमान, या ये मान अपमान है, सॉरी नॉट सम्मान, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, मित्र शत्रु, इनसे एजिटेट नहीं होना है। दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में केवल मान मिले, केवल सम्मान मिले। ऐसा है कोई व्यक्ति? अपमान भी मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको केवल लाभ होता हो? नहीं, हानि भी होनी है स्वभाव है इस जगह। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूरे जीवन में केवल सुख ही पाया हो? नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति जो केवल मित्र है, शत्रु कोई नहीं है? कोई नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो जन्म लिया कि मृत्यु नहीं होगी? नो। This is the nature of this material world. It is called duality or dvandva. Krishna is saying nirdvanda, get out of this dvanda. So your constant worry should be, what is favorable for my spiritual life? Accept it immediately. What is unfavorable for my spiritual life? Reject it immediately. That is the constant contemplation of a devotee. एक भक्त का चिंतन केवल यही होता है, ये जो मैं कर रहा हूं ये भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये मेरे को कृष्ण की तरफ लेके जा रहा है या कृष्ण से दूर लेके जा रहा है। दूर लेके जा रहा है तो छोड़ देना तुरंत, पास लेके जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? क्लियर सो फार? दूसरे अध्याय में भगवान यही बात कहते हैं जो आज का श्लोक है, बी फ्री फ्रॉम ऑल ड्युअलिटीज एंड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी। एक बात और कह रहे हैं, यदि हम इन सब चीजों को इग्नोर कर दें या ज्यादा चिंता नहीं करें मान अपमान लाभ हानि की, तो हमको एक चिंता हो जाए कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा, है कि नहीं? हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी? तो भगवान कहते हैं निरोगया निर्योग क्षेम आत्मवान, चिंता मत करो। नियोग क्षेम मतलब आई विल प्रोवाइड ऑल द मटेरियल नेसेसिटीज। आत्मवान, तुम केवल अपनी आत्मा की चिंता करो। यू सिंपली वरी अबाउट योर सोल, आई विल वरी अबाउट योर बॉडीली नीड्स। I will supply. Krishna is giving guarantee here. So we should not be in a situation that because of our material life, we do not have time for our spiritual life. That is suicide, spiritual suicide. Being so busy in material life than saying, I don't have time for chanting. I don't have time to read Bhagavad Gita. No, Krishna is giving guarantee here. Don't neglect interest of your soul. Entrust your body, I will take care. Big statement by Krishna, no? Big promise by Krishna. एक तुकाराम करके एक भक्त हुए थे, सुना आपने तुकाराम? महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। उनकी लड़की की शादी थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि शादी है, कुछ धन चाहिए, कहीं से कमा के लाओ। तो वो धन कमाने के लिए निकले, व्यवस्था करने के लिए। रास्ते में देख कहीं भागवत कथा हो रही थी, 7 दिन का भागवत सप्ताह। वो भागवत सप्ताह सुनने बैठ गए और भूल गए कि उनकी लड़की की शादी है और उनको लड़की की शादी के लिए धन की व्यवस्था करनी। पीछे से भगवान तुकाराम बन के उनके घर आए, धन लेके, शादी की व्यवस्था करने के लिए, और शादी करके चले गए। जब तुकाराम 1 हफ्ते के बाद लौट के आए खाली हाथ, क्योंकि वो तो भागवत में बैठे थे, आके उन्होंने देखा तो रास्ते में लोग बोल रहे हैं, अरे बहुत अच्छी शादी की प्रभु जी आपने, क्या अरेंजमेंट किया था,
खूब अच्छी व्यवस्था की। आप ये सोच रहे हैं मैंने तो कोई व्यवस्था नहीं की, मैं धन लाया नहीं, मैं तो भागवत सुन रहा था। घर पहुंचे, पत्नी भी यही बोली, इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे हो गई? तो इनको लगा कि मेरी अनुपस्थिति में भगवान स्वयं आए हैं इस व्यवस्था करने के लिए। So one who is seriously engaged in spiritual activities, he will never starve materially. कोई भूखा नहीं रहेगा, भगवान व्यवस्था करेंगे। सार क्या है इसका कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमको बहुत जागरूक रहना चाहिए, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा कि आप भौतिक कार्य छोड़ दीजिए, लेकिन भौतिक कार्यों में इतना ना उलझ जाएं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं है, या हम इतने भौतिक क्या बोलते हैं लक्ष्य ना पान लें कि जिनको पूर्ति करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़े और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए समय नहीं। कभी कभी हम गोल सेट करते हैं ना, आई वॉन्ट टू हैव अ मर्सिडीज कार, बस जीवन गया। अब उसको मर्सिडीज को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? या हमारा कभी कभी उद्देश्य होता है एक बड़ा घर, आलीशान घर होना चाहिए, उसको उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर समय नहीं मिलेगा, है? इसलिए भौतिक उद्देश्य इतने बड़े ना बनाएं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए समय ना बचे। Krishna is suggesting, Atmavan, you worry for your soul and bodily needs, I will supply. एक श्लोक 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। नेहा, क्या श्लोक हो? अरे माता जी, आपको याद है? दया माता जी या राधिका माता जी बताइए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, योगक्षेम। भगवान कहते हैं जो आपके पास है उसकी सुरक्षा ही मैं करूंगा, जो नहीं है वो सप्लाई भी मैं करूंगा। तुम बस चिंतन करो मेरा, अनन्यस चिंतन करो मेरा। ये जो यंग एज में ब्रह्मचारी बन जाते हैं वो इसी के ऊपर आधारित है, उनका विश्वास है भगवान हमारी व्यवस्था करें, हैं? आप देखिए 20-20 साल के ब्रह्मचारी हैं मंदिर में, इतना विश्वास कहां से आ गया उनको? भगवान देख रहे हैं ना, उनका देखभाल कर रहे हैं उनका। तो हमको ब्रह्मचारी तो नहीं बनना है, व्यस्त में ही रहना है, लेकिन इतना समय निकालना है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करते रहें। अन्यथा भागवतम कहती है श्रमेव ही केवलम, ये तो केवल हार्डवर्क है, केवल श्रम है, उसका कोई अर्थ नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। यदि आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं की तो कोई भी भौतिक सफलता एक असफलता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। यदि आध्यात्मिक रूप से हम प्रगति नहीं कर रहे तो चाहे कितनी ही भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लें वो सब असफलताएं हैं। ठीक है, यस, कोई किसी का प्रश्न तो बताइए। कोई भी जिज्ञासा हो पूछिए, अपने मन में मत रखिए। अनम्यूट कीजिए और यू कैन आस्क। बाबूलाल प्रभु जी, सब क्लियर है? कोई जिज्ञासा नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, आउट ऑफ दिस एक क्वेश्चन है, मतलब एकादशी से रिलेटेड है। सो देयर आर 2 एकादशीज,
एक कर्मकांडी वाली और एक वैष्णव वाली, जो हम लोग रखते हैं वो वैष्णव वाली एकादशी है। तो हम लोग वैष्णव वाली क्यों रखते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो एक बार थोड़ा सा जस्ट मैं बता दूं। जैसे कोई पूछता है ना कि एकादशी तो कल थी तो आपने आज क्यों रखा है, एक्चुअली क्या है माता जी, ये ना मिक्स एकादशी होती है, क्योंकि उसमें दशमी और एकादशी मिक्स रहता है। जो कर्मकांडी रखते हैं वो दशमी और एकादशी को मिला के एकादशी रखते हैं, हम रखते हैं एकादशी और द्वादशी को मिला के, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुबह एकादशी शुरू होती है, दशमी एकादशी, और ये ज्यादा ऑस्पिशियस है जिसमें एकादशी पूर्ण हो और द्वादशी मिक्स्ड हो, क्योंकि दशमी का कोई महत्व नहीं है ना, एकादशी का तो महत्व है कि नहीं। तो वो जो रखते हैं वो दशमी और एकादशी मिक्स्ड होती है, जो हम रखते हैं वो एकादशी द्वादशी मिक्स्ड होती है, ठीक है। और दोनों जो है बोथ आर ऑस्पिशियस डेज। आज का लेक्चर समझ आया आपको पल्लवी माता जी? यस प्रभु जी। तो एक बार थोड़ा बताइए, सबको समराइज कीजिए। इन नटशेल यही है कि बस हमें श्री कृष्ण का नाम, अल्टीमेट तो हमारा जो डेस्टिनेशन, जो गोल है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो यही है कि कृष्ण की करना, कृष्ण भगवान को भोग लगाना। उनको अल्टीमेटली अगर आप वेदास भी पढ़ेंगे तो वेदास में भी जस्ट यही है कि हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, कृष्ण भगवान को अपने लाइफ में पूरी तरीके से उनको उनके साथ लेके चले। वो अगर, और नेक्स्ट थिंग इज अपने सोल का ध्यान रखना। हम अपने सोल का ध्यान कैसे रखेंगे? कृष्ण भगवान की उपासना करके, चैंटिंग करके, भगवान को याद करके, लॉर्ड कृष्णा को। और जब हम अपने सोल का ध्यान रखेंगे तो हमारी मटेरियल नीड्स है, मटेरियल लाइफ है, जो उनका ध्यान श्री कृष्ण रखेंगे। हाँ, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ मी। इट इज आल्सो ए साइन ऑफ सरेंडर। ये विश्वास होना कि भगवान मेरी व्यवस्था करेंगे, मेरा लालन पालन करेंगे, ये विश्वास समर्पण का एक लक्षण है। इट इज ए साइन ऑफ सरेंडर टू कृष्ण। जैसे एक छोटे बच्चे का समर्पण माता पिता के प्रति क्या होता है कि मेरी माँ मेरे पिताजी मेरा ध्यान रखें। उसको कोई बोलना नहीं पड़ता है बार बार। छोटे बच्चे को बोलना पड़ता है मुझे कपड़े चाहिए, मुझे खाना चाहिए, बोलना पड़ता है, वो अपने आप रेडी करते हैं ना माँ बाप। क्योंकि माँ बाप पे आश्रित है बच्चा, इसलिए माँ बाप उसकी हर व्यवस्था करते हैं, उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। उस तरह से यदि हम भगवान पर आश्रित रहेंगे तो भगवान ध्यान रखेंगे, चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक जो हमारे प्रक्रियाएं हैं उनको बहुत गंभीरता से, सिंसियरली करने का प्रयास करें। थैंक यू पल्लवी माता जी। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग? और कोई भक्त? मुकुल प्रभु कहाँ गए? यस प्रभु जी, आपको क्या समझ आया आज? जो आज का जो सार है वो यही है कि वेदों का जो अल्टीमेट जो मैसेज है या सार है कि भगवान के प्रति जो है जितना अट्रैक्शन होगा वही मापदंड है। और चाहे हम सारे वेद पूरे पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद या समझने के बाद अल्टीमेटली जो भक्ति कांड है वो, और जो हमें उसके प्रति आस्था है, वही हमारा जो है जीवन की प्रगति को निर्धारित करेगा। भौतिक जीवन में हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, पर जो अल्टीमेटली जब तक आध्यात्मिक जगत में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जो कि भगवान के प्रति आस्था और विश्वास के थ्रू ही पाया जा सकता है, तो हम लोग मतलब इस जीवन में सक्सेस नहीं कहलाएंगे। मतलब हम अपने जीवन में अगर कुछ वाकई में करना चाहते हैं तो भौतिक जीवन में इतना ना खो जाएं जो जिससे अध्यात्म छूट जाए। ये मतलब जो पूरा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। चित्रा माता जी, आर यू देयर? यस प्रभु जी।
हाँ, हरे कृष्णा। आपने क्या सीखा? हरे कृष्ण। प्रभु जी, अल्टीमेटली यही है कि इफ यू आर सक्सेसफुल इन अ स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस। मतलब आप भौतिक जगत में कितना भी आगे चले जाए, बट अगर आपका वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है तो उसमें कोई भी सक्सेस, उसका कोई मायना नहीं है। बट यस, अगर आप उसके साथ में आपका स्पिरिचुअल लाइफ को भी डेवलप कर रहे हैं, उसको भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उसको भी उसमें जो सक्सेस मिल रहा है, दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस, और वो ही आपको हैप्पीनेस देता है। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। मुझे एक बार चेक करना पड़ता, सबको समझ आ गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। विनीता माता जी, विनीता माता जी, विनीता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस माता जी। सभी वेदों का सार बस यही है कि हमें कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए और हमें बहुत ध्यानपूर्वक और सिंसियरली करना चाहिए इसका। और भौतिक जगह हम चाहे भी कमा ले, कुछ कर ले, नहीं यश प्राप्त कर ले, लेकिन आध्यात्मिक जगत से जो यश और हमको संतुष्टि मिलती है वो इससे नहीं मिलती है। तो हमें इसे निरंतर बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वंडरफुल। Anyone else would like to say something? Last comment, then we'll close. Anyone else would like to say something? Hare Krishna. Prabhuji, I'll tell. Yes, Mataji, please go ahead. Mamta Mataji. Prabhuji, in this, one thing was explained that we have to move away from all the three gunas, and then we can reach to that stage, and that stage can be achieved only through chanting. The person who is there into the three gunas, he is always happiness and distress is there, cold and warmth is there. So dualities are completely faced by that person. And if one keeps chanting, then he moves away from those dualities. तीन गुणों में जो सतगुण है, सतगुण भी किसी तरह का जो है, you can say we are attracted to it, हम attract हो जाते हैं उसमें, मतलब फिर भी हम गुणों में हैं, गुणातीत रहते हैं। गुणातीत नहीं, गुणों के प्रभाव में रहते हैं। गुणातीत मतलब तीनों से बाहर। जी, तो हम लोग उसके प्रभाव में रहते हैं, और अगर हम चैंटिंग करते हैं प्रॉपरली तो हम उसमें से जो है बाहर निकल जाते हैं। एंड ग्रेजुअली मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस प्रभु थ्रू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग वो ये था कि हमारे थॉट्स पहले जल्दी जल्दी चलते थे, वो ग्रेजुअली स्लो हो जाते हैं। मतलब हम बहुत जल्दी जल्दी, जब व्हेन यू आर चैंटिंग यू गेट मेनी थॉट्स, तो बहुत सारे थॉट्स आए, फिर बीच में कहीं कृष्ण का थॉट आता है, एंड देन फिर ग्रेजुअली जब हम उसको लंबे समय तक करते हैं तो कृष्ण के थॉट्स ज्यादा आते हैं, और बीच में कहीं पर कोई और दूसरा थॉट आ जाता है। नहीं, इस एब्सोल्युटली ठीक है। हमारा भी मन अभी धीरे धीरे वश में आएगा, है, क्योंकि मन का स्वभाव है चलता। So we should not worry too much about it. Keep chanting with faith that gradually it will conquer our mind also. Yeah. Okay. Thank you Mataji. All right. तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। Thank you very much. I hope everybody is chanting nicely. क्योंकि सब लोग तो मुझे बताते नहीं हैं, कुछ लोगों का आता है ग्रुप में मैसेज की दे chanting. But I assume everyone is chanting nicely and increasing their rounds on every Ekadashi. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Prabhuji, I didn't increase. Prabhuji. Kitna? How many are chanting now? 12 only, Prabhuji. I am not able to go beyond it. Okay. Try again. It's not going. Try next Ekadashi. Okay. Prabhuji, actually some classes are also there. That is why till December I have those classes, and after that I will be, I think. Mataji, something or the other will always keep happening.
Okay. Yeah, that is true, Prabhuji. Something new will come in January, something new will come in February, something new will come in March. Yes. Okay. Yeah, but that's we true, have to Prabhuji. stay focused. Yeah, one more round means Ji, 8 Prabhuji. minutes more. 8 minutes more. Okay. So it doesn't matter. You Ji, keep Prabhuji. increasing. Krishna will manage your rest of the time. Okay. Ji, Prabhuji. So you should Ji. try to increase it. Okay. Thank you, Mamta Mataji. Ji, Prabhuji. All right. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Thank you. See you in the next session.